الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من قال نبي آدم بين الماء والطين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد شفيعنا وحبيبنا وسيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم یاقوت پورہ میں آج کا یہ بھی مشاہد جلسہ گزشتہ سال بھی یہاں حاضر ہوا تھا اور ٹھیک 1 سال کے بعد پھر دوبارہ یہاں آنے کا موقع میسر آیا. تم دونوں مشکور ہوں یہاں کے نوجوانوں کا اور بالخصوص یہاں کے علماء کا کہ جنہوں نے ایک بار پھر یہاں پر مجھے حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا اور یہ شرف عطا کیا کہ علماء کی سرپرستی میں ان کی موجودگی میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں. وقت کافی ہو چکا ہے اور زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے مختصر وقت میں بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. حالانکہ عنوان جو دیا گیا ہے یا جو عنوان اشتہارات پر لکھا گیا ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک تقریر نہیں بلکہ بہت زیادہ تقاریروں کی ضرورت ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ آج مختصر وقت میں کچھ کام کی باتیں ہو جائے. اشتہار پہ اگر آپ نے عنوان دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا ہے تو سن لیجیے. عنوان یہ ہے کہ شہادت حسین اور آج کے بدلتے ہوئے حالات. فلسفہ شہادت حسین کیا ہے اور حالات کس طرح تیزی سے آج بدلتے جا رہے ہیں. جو کچھ اب تک بدلے ہیں یہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے اور آگے کیا بدلنے والے ہیں یہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے. زیادہ تمہید کو میں اب لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بہت مختصر میں بالکل موضوع پر آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور میری تقریر کا جو پورا محور ہوں گا اسی کے ارد گھومیں گا کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا بتایا جا رہا ہے، حالات کیسے بدل گئے اور اللہ جانے کی اور کیسے حالات پھر بدلیں گے. تو سنیوں کو خاص طور سے محبان اہل بیت کو جو اہل بیت سے نبی کے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، آج کے بدلتے ہوئے حالات کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کے بعد اپنی نسلوں کی تربیت کیسی کی جائے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. خطبے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیت ہے جو محرم کی ایسی کون سی مجلس ہے جس میں خطیب یہ آیت کو موضوع نہ بناتا ہو. سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے. ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، لا سلوکم، میں تم سے نہیں مانگتا. اے محبوب آپ اپنے امت کی سے کہیے کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا.
کیا طلب نہیں کرتا؟ اجر، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا تم سے، کوئی شے نہیں مانگتا۔ الا المودۃ، مگر صرف یہ چاہتا ہوں کہ مودت کرو، محبت کرو، عزت و تعظیم کرو۔ کس سے؟ فی القربا، میرے خاندان والوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے۔ یہ لفظ ٹو لفظ کا میں نے ترجمہ کیا۔ پوری آیت کریمہ کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ حبیب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کچھ نہیں مانتا، میں نے رسالت کا جو فریضہ ادا کیا ہے، جو تمہیں تبلیغ کی، گمراہی سے تمہیں ہدایت کی طرف لایا، وہی تو تھے تم جو 365 باطل معبودوں کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ تمہیں شعور نہیں تھا کہ پیشانی کہاں جھکانی چاہیے۔ تم پتھر کو دیکھ کے جھک جایا کرتے تھے، لکڑی کو دیکھ کر جھک جایا کرتے تھے، کیڑے مکوڑے جانوروں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ جس سے تمہیں خوف محسوس ہوتا اسے بھی تم معبود سمجھتے، جس سے تمہیں فائدہ ملتا اسے بھی تم معبود سمجھتے۔ مگر میں تمہارے درمیان آیا اور میں نے تمہیں بتایا کہ سجدے کے لائق یہ چیزیں نہیں ہیں جو نفع دے یا نقصان دے۔ سجدے کے لائق وہ ذات ہے جس نے ان چیزوں میں نفع اور نقصان کی تاثیر پیدا کی ہے، جو ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے تمہاری پیشانیوں کو باطلانہ معبود کے سامنے جھکنے سے بچا کر، اٹھا کر ایک معبود حقیقی کے سامنے جھکنے کا سلیقہ دیا۔ اس پر میں کوئی اجرت نہیں لیتا تم سے، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربا، ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے احسان کا کچھ بدلہ چکانا چاہتے ہو، حالانکہ یہ احسان کا بدلہ چکانا ناممکن ہے۔ جہنم سے جنت کی طرف کیا ہے رسول نے، حقیقی معنوں میں انسان بنایا ہے رسول نے۔ ارے یہ تو چھوڑیے، سانس لیتے ہیں یہ نبی کا صدقہ، سانس چھوڑتے ہیں یہ نبی کا صدقہ، کھاتے ہیں تو نبی کا صدقہ، پیتے ہیں تو نبی کا صدقہ۔ اگر اللہ اپنے نبی کے صدقے کی خیرات بانٹنا بند کر دے تو نہ سانس اندر آئے نہ باہر جائے۔ ایک ایک سانس پر نبی کا احسان، مگر میں اجرت نہیں لیتا، اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، تم سے کوئی میں امید نہیں کرتا کہ تم اس کا بدلہ چکاؤ۔ ہاں مگر یہ الا المودۃ فی القربا، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم میرا یہ احسان مانتے ہو، تم احسان فراموش نہیں ہو، احسان مند ہو، تو پھر یہ کرو کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آیت نے واضح کر دیا کہ اہل بیت سے محبت وہ کرے گا جو احسان مند ہوگا، جو حرام خور ہوگا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، جو احسان فراموش ہوگا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فاروق رضوی کی زبان بڑی تلخ ہے، بڑی شدت ہے۔ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہی کہاں ہے؟ قرآن پڑھتا تو دیکھتا کہ ولید ابن مغیرہ کو حرام کی اولاد کا ہے قرآن سے، نطفہ حرام کا ہے۔ قرآن سے زیادہ سخت کلام کسی کا نہیں ہے۔ ارے ہم تو بندے ہیں، خالق کے کلام کے مقابلے میں ہمارے کلام کی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ لعنت بھیجے تو وہ اس سے بڑھ کر کوئی سختی نہیں، وہ کسی کو فاسق کہے تو اس سے بڑھ کر سختی نہیں، کسی کو کافر کہے تو اس سے بڑھ کر سختی نہیں۔ ہم کافر کہے ہمارا کہنا اور ہے، رب کا کسی کو کافر کہنا اور ہے۔ تم ہمارے کلاموں کی شکایت کرتے ہو، قرآن کو تو پڑھ لیا ہوتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت وہ ادا کریں گے جو محبت اہل بیت کریں گے۔ مگر آئیے اس آیت کریمہ کے ضمن میں میں ایک دوسرا پس منظر اور پیش کروں۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کا، کب نازل ہوئی آیت؟ اور اس کا ایک دوسرا پس منظر دیکھیں، جتنے ہم نبی آئے سب نے کہا کہ ہم بھی تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتے، اجرت طلب نہیں کرتے، ہمارا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آئیے میں کچھ آیتیں پڑھوں۔ سورہ ہود آیت 51 دیکھیں آپ۔ ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ ان کا جملہ نقل کر رہا ہے، ہود نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرانی، اے میری قوم میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں کچھ اجرت نہیں مانگتا، کچھ معاوضہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ میری
तबलीग का बदला मेरा रब देगा। बदले को किस तरफ किया? अल्लाह की तरफ मंसूब किया। अल्लाह देने वाला है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को देखें, सूरह शूरा आयत 45, फिर देखें सूरह लूत, ये सूरह शूरा आयत 146, उसके बाद देखें सूरह शूरा आयत 180। ये मुख्तलिफ आयतें जो मैंने नंबर बताए, शोएब अलैहिस्सलाम का जुमला, लूत अलैहिस्सलाम का जुमला, सालेह अलैहिस्सलाम का जुमला। हर नबी कह रहा है वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। ऐ हमारी कौम, हमने तबलीग की तुम्हें, हम कुछ नहीं मांगते तुमसे, कोई अजर तलब नहीं करते, कोई उजरत तलब नहीं करते। हमारा अजर, हमारा मौजा, हमारा मेहनताना रब्बे कायनात अता करे, रब्बुल आलमीन देगा। बड़ी अजीब बात है कि सारे नबियों ने तबलीग के वक्त कहा कि अजर कौन देगा? अल्लाह। और रसूल कह रहे हैं कि मैं अजर तो नहीं मांगता, मगर तुम अजर दो। क्या दो? मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नबी के जितने एहसान, उस एहसान का दुनिया में कोई बदला नहीं हो सकता। एक पल्ले में एहसान मुस्तफा को रखें और दूसरे बल्ले में अगर अजर को रखे जाए, उजरत को रखे जाए, तो कोई उजरत एहसान मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकती। मगर कुछ हद तक अगर एहसान मुस्तफा का शुक्र अदा किया जा सकता है, कुछ हद तक मुस्तफा के एहसान का बदला चुकाया जा सकता है, तो अगर कोई पूरी कायनात में बदला हो सकता है तो वो सिर्फ ये अहले बैत की मोहब्बत। तो अब बात समझ में आ गई कि एक तरफ है एहसान मुस्तफा, दूसरी तरफ है अहले बैत। तो अहले बैत ना हो तो एहसान मुस्तफा ना हो, और एहसान मुस्तफा तब है जब अहले बैत है। ये साथे हैं तो एहसान है। इसका शान नज़ूल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास पहनते पेबंद लगा हुआ है। अच्छा, लोग जाहिर को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं हैसियतों का, कपड़े को देखकर, लिबास को देखकर हैसियतों के अंदाजे लगाए जाते हैं। और यही वजह है कि एक जमात रसूल के जुमलों पर अंदाजा लगाती है। कुछ वाक़िअ हो गया, नबी खामोश है, नबी की खामोश से समझ गया कि नबी को नहीं मालूम। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का हार गुम हो गया, नबी खामोश है। कहा नबी को मालूम नहीं है, मालूम होता तो बता देते। अरे खामोशी ना मालूम होने की दलील कब से बन गई? और ये अजीब बात है, कहते हैं कि हार गुम हुआ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का, नबी को नहीं मालूम था। हदीस में कहा लिखा है कि साहबा ने आके रसूल से पूछा, हो या रसूलल्लाह हार गुम हो गया, हमें बताइए कहाँ है हार? और नबी ने कहा मैं नहीं जानता। पूछा ही नहीं, पूछते तो बताते, जब पूछा नहीं तो नबी ने बताया नहीं, और नबी ने बताया नहीं तो इससे ये कहा साबित हो गया कि नबी को नहीं पता था। अच्छा, अजीब बात है, कहते हैं कि देखो इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी इल्म गैब मानो शिर्क है, शिर्क हो जाएगा। अबे तू तो इस अकीदे में खुद सबसे बड़ा मुशरिक हुआ। पूछे कैसे? तू कह रहा है कि आयशा सिद्दीक़ा का हार गुम हुआ, नबी को नहीं मालूम था, तो ये तुझे कैसे मालूम हुआ कि नबी को नहीं मालूम था? तो तू तो खुद दावा गैब कर बैठा, चला था नबी के इल्म गैब का इनकार करने, खुद ही गैब का दावा करने लगा कि नबी को नहीं पता था। तो तुझे कहाँ से पता चल गया कि नबी को नहीं पता था? मैं खामोश बैठा हूँ तो मेरी खामोशी से अंदाजा लगाएंगे कि मैं क्या नहीं जानता और क्या जानता हूँ। अरे मैं जितना बोलूं जरूरी नहीं है जितना बोला उतना ही जानता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ उससे ज्यादा जानता हूँ। तो जब मुझे से शख्स का ये हाल है तो मुस्तफा की खामोशी ला इल्म होने की दलील नहीं है। चलिए बात कहीं और जा रही है। बहरहाल मुस्तफा पेबंदा लिबास पहनते तो ये मतलब नहीं है कि मजबूर है, बेबस है। खाना कभी मिलता है तो खा लेते, वरना फाके होते। घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता। साहबा इकराम ने देखा, मशवरा किया कि रसूलुल्लाह बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजारते हैं, बाकी की जिंदगी गुजारते हैं, ऐसा किया जाए चलो सब माल जमा करो, जिससे जो बनता है लाओ, हम रसूलुल्लाह की इमदाद करें, सरकार की मदद करें। ये सोच है, बशरी सोच थी उनकी। हर सहाबी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, माल और दौलत जमा किए और
कपड़े, लिबास, खाने की अशिया, रुपये, पैसे, दर मदीना सब जमा करके सरकार की खिदमत में ला या रसूलल्लाह ये हमारी तरफ से हदिया है, तोहफा है, कबूल की। तोहफा रसूल के पास लाए हैं, अब कबूल करे या ना करे रसूल की मर्जी है, मगर रब तबारक व तआला मुदाखलत फरमाता है। कहा अभी ये आपके मकाम को समझ नहीं पाए, आपके पेवंदा लिबास को देख के समझा कि आप मजबूर है, गरीब है, मिस्कीन है, आपको भूखा देखा तो मिस्कीन है समझा, गरीब समझा। अभी जरा अपना मकाम तो बता दीजिए। तो नबी ने कहा कि तुम ये मदद के लिए लाए हो तो तुम क्या ये समझते हो कि मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, कमजोर हूँ, मिस्कीन हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास माल नहीं है? ये वजह नहीं है कि मैं पेवंदा लिबास पहनता हूँ तो गरीब हूँ। अरे मेरी शान ये है, मिशकात शरीफ की हदीस हजरत आयशा से फरमाया, अय आयशा अगर मैं चाहूँ, तुमने सुने रोशनी का, अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने के बन जाए और मेरे साथ चले, मैं चाहूँ। अब इसमें देखिए मैं चाहूँगा जुमला, इस हदीस में दो बातें बड़ी खास है, अगर मैं एक नुक्ते में गुफ्तगू करूँ बहुत तवील हो जाएगा बात, लेकिन फिर भी मैं कुछ बात इश्क की रख के जाऊंगा आपके साथ। मैं चाहूँ इस लफ्ज की वजाहत करना चाहता हूँ और मकाम मुस्तफा को समझे। बॉम्बे में आप जाएं, सबसे महंगी होटल है ताजमहल होटल, टाटा की है, टाटा बिरला। वहां पर एक रूम की कीमत एक रात या एक दिन गुजारना है तो 60,000 रुपए से रूम शुरू होते हैं। सबसे सस्ता रूम कितने रुपए का है? 60,000 रुपए पर डे। सबसे महंगी होटल है। अब मिसाल दे रहा हूं मैं समझने के लिए कि टाटा बिरला ने ऐलान किया कि मैं ताजमहल होटल बेचने वाला हूं। बहुत कमा लिया इस होटल से, हमको ये होटल बेचना है। तो ताजमहल होटल के सामने एक भिखारी भीख मांगता था, उसने भी अखबार में पढ़ा, न्यूज में पढ़ा कि ताजमहल होटल बिकने वाली है, तो उसने ऐलान किया कि मैं ताजमहल होटल खरीदने वाला हूँ। बताइए दुनिया मान लेंगी? अरे भाई जिसके एक रूम का किराया मिनिमम जहाँ से स्टार्ट होता है वो 60,000 रुपया है, फिर 2.5 लाख और 3 लाख रुपया पर डे तक के रूम है वहां पर। एक भिखारी कह रहा है कि मैं ये होटल खरीद लूंगा, तो लोग यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। सब जानते हैं मस्करापन कर रहा है, इसकी औकात और हैसियत नहीं है कि खरीदे। मगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट खड़ा हो जाए अमेरिका का, साथ में वीरूभाई अंबानी भी खड़े हो जाए और दोनों कहे कि हम सब दोनों मिलकर पार्टनरशिप में ताजमहल होटल खरीदने का इरादा रखते हैं, अगर हम चाहे तो होटल खरीद ले, मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? अरे हाँ या ना? मानेंगे। सब जानते हैं कि ये खरीद सकते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो बात समझ में आ गई। जब एक भिखारी ऐलान करता है तो बात मजाकिया खेस लगती है, मगर एक साहिब इक़्तिदार, साहिब हैसियत ऐलान करता है तो मालूम होता है कि ये ऐलान कर रहा है, दावा कर रहा है, इसके दावे में सच्चाई है। तो मुस्तफा का लिबास फकीरों जैसा जरूर है, लिबास पे पेवन जरूर है, मगर इख्तियार ये का मैं चाहूं, मैं चाहता नहीं इसलिए सोने का बंदा नहीं, मैं चाहूं तो बना दूं। तो पहले बताया कि मैं ये ताकत भी रखता हूं, अल्लाह ने ये इख्तियार भी दिया कि ये पहाड़ सोने का बन जाए। और पहाड़ देखिए जानदार नहीं होते, बेजान हुआ करते हैं, चलते नहीं है पहाड़, उड़ते नहीं है पहाड़, पहाड़ जमे हुए होते हैं, मुर्दा हालत में होते। और नबी ने कहा सिर्फ सोने का ना बनाऊं, मैं चाहूं तो सोने के बने, मेरे साथ चले, मैं जिधर जाऊं ये पहाड़ मेरे साथ चले, मैं जिधर जाऊं ये साथ चले। तो गोया मैं वो हूं जो मुर्दों को जिंदगी भी अता कर देता है। मेरे रब ने मुझे वो इख्तियार दिया कि मैं हैयतें और हैसियतें भी बदलता हूँ और बेजानों में जाने भी फूकता हूँ। ईसा तो परिंदों में जान फूकते थे, मैं पहाड़ों में जान फूक सकता हूँ। ईसा का मोजेज़ा और है, मेरा मोजेज़ा और है। ये नबी की शान है। और एक हदीस बुखारी के अंदर फरमाया, बुखारी की हदीस, बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। हदीस पाक के अल्फाज क्या है? इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, सीधा साधा तर्जमा, बेशक अल्लाह खजानों
खजानों का मालिक, मैं उसका तकसीम करने वाला। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। कहा नहीं साहब, वो इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में हदीस लाई और उसका पहले का जो ऊपर का सियाक है अमीर माविया से रिवायत है, वो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत की। पहले उसका एक हिस्सा आ गया कि अमीर माविया कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा रखता है उसको दीन का फकीह बना देता है। और उसके बाद फिर ये जुमले है कि इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युतीउन। तो कहा कि हाँ, मैं तकसीम करने वाले से मुराद इल्म है, सिर्फ नबी इल्म बांटते। मैंने कहा कल पे तेरे पत्थर। अगर नबी सिर्फ इतना कहते कि अल्लाह जिससे भलाई चाहता है उसे दीन का फकीह बना देता है और मैं तकसीम करता हूँ, तो हम समझ सकते थे कि बात इल्म की हो रही है। लेकिन नबी जानते थे कि कुछ जाहिल ऐसे आएंगे जो इस हदीस की तशरीह करेंगे कि मुस्तफा सिर्फ इल्म दे सकते, बाकी कुछ नहीं, बाकी मामलों में मजबूर है। तो मुस्तफा ने ये नहीं कहा अल्लाह खजानों का मालिक है, तो पहले तू बता खजाने इलाही में है क्या? तो अब जो कुछ खजाने इलाही में है तकसीम मैं करता हूँ। खजाने इलाही में दौलत है, दौलत मैं बांटता हूँ। खजाने इलाही में ज़र और माल और मकाल है, मैं तकसीम करता हूँ। औलादे खजाने इलाही में है, बशर खजाने इलाही में है, जिन्नात खजाने इलाही में है, फरिश्ते खजाने इलाही का हिस्सा है। मैं इनमें ड्यूटियां मैं तकसीम करता हूँ। औलाद मैं देता हूँ, इल्म मैं देता हूँ, माल मैं देता हूँ। तो अब नबी ने कहा मेरी शान वो है, मेरे लिबास को मत देखो, मेरे पेवंददा लिबास को मत देखो, मेरे फाकिर को मत देखो। मेरी शान ये है, मैं जिसको चाहता हूँ माल देता हूँ, जिसको चाहता हूँ औलाद देता हूँ, मैं तकसीम करता हूँ। तो मेरी शान ये कि मैं तकसीम करने वाला मुख्तार अल्लाह ने मुझे बना दिया खजानों का। आला हज़रत ने कहा ला व रब्बिल अर्श, जिसको मिला जो कुछ मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। और हुज़ूर ताज शरिया फरमाते हैं जहावानी अता कर दे, हरी भरी जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता। तो मैं जो चाहूँ अता करूँ, जिसको चाहूँ अता करूँ। तो मेरा लिबास देखकर समझते हो कि मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, बेबस हूँ। ऐ रब्बे कायनात, इन्होंने समझने की भूल की है। मान लाए, अल्लाह ने फरमाया हबीब तू मत कह, मैं कहूँगा। कुल महबूब फरमा, मान लेकर आए हैं, समझ नहीं रहे कि तू तो काशी में नेमत है। अगर तू ना होता तो कुछ पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तेरी जात ना होती तो मैं कुछ बनाता ही नहीं, सब कुछ तो तेरे लिए। मान लाए तू जवाब नहीं देगा हबीब, जवाब मैं दूंगा। अगर तुम ये माल देना चाहते हो, ये बदला नहीं है मेरी तबलीग का। तुम ये दौलत देना चाहते हो, ये बदला नहीं है मेरी तबलीग रिसालत का। अजर रिसालत के माल और दौलत नहीं हो सकती। अरे ये जो तुम लाए हो ये भी मैंने तुम्हें दिया, ये मैंने अता किया, तुम समझ नहीं पा रहे हो। हबीब मैं जवाब देता हूँ, कुल फरमा, क्या फरमा, ला सालुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता, ये दौलत नहीं चाहता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिर्फ ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। एक तरफ मोहब्बत अहले बैत को रखा और दूसरी तरफ बताया कासिम नेमत मैं, खजानों का मालिक मैं, बांटता मैं हूँ, देता मैं हूँ, तकसीम मैं करता हूँ। मालिक अल्लाह है लेकिन बांटता मैं हूँ। अब बात समझ में आ गई कि कायनात में जो कुछ बचता है नबी बांटते हैं, मगर किसके सदके में बांटते हैं? अहले बैत के सदके में बांटते हैं। तो जो अहले बैत से मोहब्बत करते वो नबी का सदका खाते, और जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते वो नबी के सदकों पे नहीं बढ़ते, सऊदिया की रियालों के टुकड़ों पे बढ़ते। अब दोनों का पलना और है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएगा छोड़ के सदका दे।
तुम्हें ये नष्ट के टुकड़े मुबारक हो, हमें मुस्तफा का सदका मुबारक। ये है कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। अब आगे जरा हालात बदले, कुरान की आयत आई, सबने यही समझा साहबा ने कि भाई नबी के खानदान में जो है सबसे मोहब्बत, सबसे उल्फत, और खानदान में फिर सिर्फ किससे मोहब्बत? सिर्फ अली और फातिमा से नहीं, अली और फातिमा की जितनी औलादें हैं सबसे मोहब्बत, बल्कि ये आयत के सिक्र में जितने सादात है सब दाखिल, हर सैयद से मोहब्बत करनी है आपको। मगर जिनको नबी के सदके खाने की तौफीक नहीं मिली थी, जो दुनिया के टुकड़े फल खाते थे, वक्त के ताजदारों के तलवे चाटते थे, हजम नहीं हुआ, वाक़ियत के बहुत बड़े चैंपियन, जमात वाबी के बहुत बड़े चैंपियन 600 साल तक यही सब कहते रहे कि इस आयत करीमा में नबी के सारे खानदान वाले शामिल, सबसे मोहब्बत का हुक्म है कुरान में, सबसे मोहब्बत करो, सबसे उल्फत करो, अजर रिसालत यही है कि अहले बैत से मोहब्बत करो। 661 हिजरी में एक साहब पैदा हुए जो वाबी जमात के बहुत बड़े चैंपियन कहलाते, अहले हदीस भी मानते, देवबंदी भी मानते। उन्होंने किताब लिखी, किताब मेरे सामने है, नाम है मिनाजुस सुन्ना, देख रहे हैं आप, सफा नंबर 436 है इसका। 436 पर किसने लिखा ये? 600 साल के बाद एक नाज़वी तबीयत के शख्स पैदा हुए। नाज़वी एक ऐसा फिरका था जो अहले बैत से मोहब्बत ही नहीं करता था, और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नाज़वी वो फिरका पैदा हुआ जो अहले बैत को गालियां तक बकता। इब्तिदा होती थी अहले बैत को गाली बकने से, और जब अंजाम पत्थर होता तो ये खासियत में तब्दील होते और कहते अली तो फिर माज़अल्लाह काफिर है, अली को काफिर कह देते। ये आखिरी हद थी उनकी, इब्तिदा थी नाज़बियत और इंतहा होती खारजियत। अब मैं नहीं समझ पाया कि जहन खारजियत की थी कि नाज़बियत थी। 661 हिजरी में पैदा हुए, 727 में मर गए। नाम था अब्दुल हलीम इब्न तैमिया, इब्न तैमिया, जिनका नाम जब तक ना लो अहले हदीस, नाम निहाल अहले हदीस का खाना भी हजम नहीं होता। मिनाजुस सुन्ना के सफ़ा नंबर 436 पे लिखा कि कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, इसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन नहीं है। बोले माशाअल्लाह। का इस आयत में इमाम हसन और इमाम हुसैन नहीं है, इनसे मोहब्बत करने की कोई जरूरत नहीं, ये अहले बैत में नहीं। इससे पहले कभी सुना है आपने ये चीज? मैं बता रहा हूँ हालात कैसे बदले। किताब मेरे सामने, जिसको देखना हो तकरीर के बाद आके देख सकता है। मिनाजुस सुन्ना छपी भी इन्हीं के यहाँ से, मकतबा शहीद मेमुनात भज्जन से, यूपी से। कहा इसमें हसन हुसैन नहीं है। पूछा गया क्यों नहीं है? अकल की घोड़ी और कसौटी देखो। कहा इस आयत में कि नबी ने, अल्लाह ने फरमाया अहले बैत से मोहब्बत करो, इसमें इमाम हसन और हुसैन नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये आयत मक्का में नाजिल हुई। आयत कहाँ नाजिल हुई? मक्का में। आयत करीमा मक्का में नाजिल हुई और इमाम हसन और हुसैन मदीने में पैदा हुए। तो जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त इमाम हसन और हुसैन थे ही नहीं, इसलिए वो इस आयत के अंदर दाखिल हुई। अब बताइए कितना मदाहिया खेल जुमला है ये, कितना अजीब भूला इस्तदलाल है ये बात तो सही है। चलिए हम तस्लीम करते हैं कि जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई, मक्का में नाजिल हुई, उस वक्त हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह भी नहीं हुआ था जिस वक्त ये आयत आई। इमाम हसन और इमाम हुसैन भी पैदा नहीं हुए थे, ये भी ठीक। मगर ये कौन सी अकल की कसौटी है कि इनको इमाम हसन और इमाम हुसैन को अहले बैत से खारिज किया जाए? और दलील ये कि उस वक्त पैदा नहीं हुए। आइए मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, मिसाल सामने रखूंगा, फैसला आप करके जाए। ये हमारे मन्नान अशरफी साहब बैठे हुए, आपकी शादी हो गई? चलिए ये बहुत अच्छी बात है, मेरी मिसाल में तो बड़े सूट होंगे। मन्नान अशरफी साहब है, शादी नहीं, चलिए इनकी शादी हो गई, शादी करवा देते। शादी हुई, इनकी बेगम साहिबा हामिदा,
لیکن تبھی ان کو اچانک دبئی جانا پڑا کاروبار کے سلسلے میں. انہوں نے ایک نوکری کے لیے اپلیکیشن دیا تھا, اپلیکیشن منظور ہو گئی, یہ دبئی چلے گئے. اب جانے لگے تو اپنے بھائی کو بلایا, گھر کا سب سے کرتا دھرتا بھائی ہے. بھائی سے کہا بھائی دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن میری بیگم جو ہے, آپ کی بھابھی جو ہے, آپ کے بھروسے چھوڑے جا رہا ہوں, بھابھی کا خیال رکھنا, ابا کا بھی خیال رکھنا, امی کا بھی خیال رکھنا, یہ سب میرے گھر والے ہیں. گھر والے ہیں کہ نہیں ان کی بیوی گھر والی ہے, ابا اماں گھر والے ہیں, ان سب کا خیال رکھنا, ان کا جو ضرورت ہو پوری کر دینا, پیسے کی فکر مت کرنا, مجھے فون کرنا, میں پیسے بھیج دیا کروں گا. یہ چلے گئے ہمارے منان اشرفی صاحب. ان کے جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا, لیکن ان کے بھائی صاحب کیا کرتے ہیں, امی کو کھانا کھلاتے, ابو کو کھانا کھلاتے, ان کی بیگم کو کھلاتے, لیکن بچے کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں. بچے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے, دودھ نہیں لا کے دیتے, دوائی کی ضرورت ہے, دوائی لا کے نہیں دیتے. ان کی بیگم پریشان ہو کہتی ہے اپنے دیور سے, ان کے بھائی سے, کہتے بھائی جان یہ کیا کر رہے ہو آپ, یہ بچہ آپ ہی کے گھر کا ہے, آپ ہی کے یہاں پیدا ہوا, آپ کا بھتیجا ہے, مجھے دوا کی ضرورت ہوتی ہے, آپ اس کے لیے دوا نہیں لاتے, دودھ کا انتظام نہیں کرتے. کہا بھابھی جان یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا, جس وقت ہمارے بھائی نے کہا تھا میرے گھر والوں کا خیال رکھنا, اس وقت یہ پیدا نہیں ہوا تھا, یہ اس وقت نہیں تھا, پھر بعد میں آیا, بولنے کے بعد میں آیا. بتائیے یہ انصاف ہوا؟ کوئی جاہلی کہے گا کہ یہ اس گھر والا بچہ نہیں ہے, اس خاندان کا بچہ نہیں ہے. ارے جب نبی قرآن نے کہلوایا کہیے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو, ان کی عزت کرو, تعظیم کرو, ان کا خیال رکھو. مانا اس وقت حسن و حسین نہیں تھے, مگر بعد میں پیدا ہوئے, خون تو نبی کا ہے, گوشت تو نبی کا ہے, جسم تو نبی کا ہے.